Well, hello and welcome to the Print Live. I would like to start this session by thanking our subscribers, who have always supported us, and I hope that you will continue to do so. And we will continue to do our cutting-edge reportage. We will continue to bring you in-depth analysis, reporting, ground reportage. Thank you so much for joining in. I'm also joined by my colleague Shankar Animesh, a senior journalist. I'm sure you must have seen his video analysis, pure politics, where he gives his perspective on the latest political developments. Shankar, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Well, all of you must have seen the Lok Sabha results that have come in. Many were surprised. Many said that no, this is something that they were expecting. Well, between 2019 and 2024, the BJP's Lok Sabha tally fell from 303 to 240, with most of the losses concentrated in four Hindi heartland states: Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, and Haryana. With 49 seats dropped here, these four states contributed the most to the BJP's overall reduction in seats, and because of that, now the BJP has to rely on its allies to ensure they are able to deliver a government at the center. Well, we have got a number of questions from our subscribers. We will be taking them one after another. I will like to begin with James Sheridan, who wanted to know how will Modi react to the lessons learned. Well, this obviously is the first time for Prime Minister Narendra Modi, who will be running a coalition government, though there have been allies in the past in 2014 and 2019, but the BJP had a clear majority at that time. They were not dependent on their allies, something which has changed now. They also don't have any experience in running a coalition government on such a scale. But on a lighter note, BJP always talks about sabka saath, sabka vishwas. Well, this is something that they will have to actually implement in all practicality. Well, some of the lessons I feel that the party should pay heed to is to take state leaderships in confidence, something that especially did not happen in a number of states, especially Rajasthan, where I traveled during my election reportage. At the same time, because the state leadership in Odisha was taken into confidence, it is because of them that the alliance with BJD did not take place. We can see that the results were quite different. At the same time, the speed at which leaders from other parties were inducted within the BJP, that also needs greater introspection. This is something that BJP leaders over a period of time have been sharing with us. I had interviewed Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who in our interview had said that he would make an appeal to the state president that not everyone should be inducted in the party. There has to be a system, there has to be checks and balances. Many feel that it affected the overall ideology, or it diluted the overall ideology of the party, and the impression of winning at all cost is something that the core BJP workers were not happy with. Shankar, another question for you. Is this going to cut योगी आदित्यनाथ to size? आपने देखा होगा काफी इसके ऊपर एनालिसिस हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से सीटें कम आई हैं, उससे योगी आदित्यनाथ पे क्या फर्क पड़ेगा, और सेंट्रल लीडरशिप इसको किस तरह देखती है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह का मैंडेट है योगी आदित्यनाथ का यूपी से, एक इतने बड़े क्रूशियल लार्जेस्ट स्टेट जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती है, वहां से अगर 272 का मैंडेट नरेंद्र मोदी हासिल नहीं कर सके तो उसके पीछे यूपी है। तो पोस्ट रिजल्ट एनालिसिस निश्चित रूप से होगी, और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो हमेशा पावर ऑफ कॉरिडोर में गूंजता रहा है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो मैंडेट है वो उससे उनके लिए आसान होगा। अगर सचमुच वो हटाना चाहते हैं इतने बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, जिसका कि ये अपनी एक प्रो हिंदुत्व की कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ राजपूतों के नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपना जो एक वोट बैंक कल्टीवेट किया है, हिंदुत्व लॉबी प्लस वो महिलाओं का वोट बैंक बुलडोजर पॉलिटिक्स के जरिए, इसके अलावा जो राजपूत वोट बैंक है, तो 3 वोट बैंक उनके साथ में जुड़ा हुआ है यूपी में। अब किस तरह की वहां पे गुफअप हुए, किस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, ये बीजेपी हाईकमान आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा करेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने एक चैलेंज है कि अगर सचमुच बीजेपी हाईकमान उन्हें हटाना चाहता है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है बीजेपी हाईकमान के सामने। लेकिन
योगी आदित्यनाथ को हटा के बीजेपी हाईकमान आगे किस तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा? क्या केशव मौर्य इतने बड़े स्टेट को चला पाएंगे? क्या 2027 का जो असेंबली पोल होगा उसमें वो बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? ये सारे सवाल होंगे योगी के ऊपर डिसीजन लेने के पहले। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वो हटाने का डिसीजन लेंगे तो वो कितना बड़ा बैकफायर कर सकता है, क्योंकि योगी की अपनी एक कोर कंस्टिट्यूएंसी है, आरएसएस में भी उन्हें पसंद किया जाता है। Ji. In the course of this live, if anyone wants to ask a question, they can raise their hand or share in the chat, and we will be taking your questions too. These are some of the other questions that we have already received and we are answering. Ramakrishna Ramanathan had asked, is there a possibility that this government, once it is formed, that it will not be able to last its term? Well, there is definitely going to be some friction as these parties come from diverse backgrounds and they draw support from various communities which they would cater to. So definitely it will have a bearing on their approach, the approach that is coalition government will take. But I think it will be too early to comment whether it will last its term or not, because the government is yet to be formed. I mean, already my colleague Shankar had interviewed the JDU's senior leader KC Tyagi, who's already come up with a wish list that these are the things that we want the government once it's formed to take note of. So I believe that it will also be important to see how BJP will manage and who will get what responsibilities. For instance, some senior leaders of the party are more acceptable faces as far as coalition parties are concerned. Many are already talking about that. Will Amit Shah continue to have will continue to be the home minister? Will it be a new face, someone like Rajnath Singh, who's more acceptable to different parties? So it will be interesting to see the kind of power dynamics, how that will dictate what this coalition government will do. And for instance, some of the core issues that the BJP had promised to deliver on, whether it's UCC, Uniform Civil Code, or the opposition's demand, including that of Nitish Kumar about caste survey. So how will the government navigate all of that? We are hearing that the swearing-in ceremony will take place on Sunday, but still, I mean, there is no clarity whether it's happening on Sunday or Monday. So we will continue to get you the latest on that. But I would say that definitely there is going to be some friction, but how it will actually pan out is something that we will have to wait and watch. Shankar, another question for you. Mr. Once again, I'll just take his name. Satyam Kumar wants to know, and I'll just read out the question. क्या ये पाखंड और बेशर्मी की हद नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों को भारत में डेमोक्रेसी और ईसीआई खत्म होता दिख रहा था, लेकिन अब जब मोदी जी को बहुमत नहीं आया है तो भारत में डेमोक्रेसी है, वो ये बोलते हैं, ऐसा उनका प्रश्न है। देखिए सत्यम, कुल मिलाकर जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है ये नैरेटिव बनाने का खेल होता है। कौन अपनी नैरेटिव को जनता के बीच में ले जाए या फिर जनता को दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस कर सके। कई लोग इसको कह सकते हैं बेवकूफ भी बना सकते हैं आप जनता को। तो अपने नैरेटिव को ले जाने के लिए आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाएं, एलिगेशन लगाएं, आप कहें कि इंडिया में इलेक्शन पारदर्शी नहीं है, उसमें फ्लॉ है, आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा रहा है। तो ये सारा जो नैरेटिव है ये चुनावी कैंपेन के हथियार हैं, मोहरे हैं। कौन अपने मोहरे को अच्छे ढंग से चलता है, जैसे कि महाभारत में भी कहा गया कि आप अपने मोहरे को अच्छा चलेंगे तो सत्य के नजदीक पहुंच पाएंगे। तो इसमें ये तो साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन की अटैक करने के बाद भी, इतना एलिगेशन लगाने के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में मैंडेट आया है वो साबित करता है कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, इलेक्शन पारदर्शी था। अदरवाइज तो फिर नरेंद्र मोदी 272 या 295 या 300 प्लस अपनी सीटें ले आते ईवीएम को मैनेज करके। तो ये सब नैरेटिव बनाने का खेला होता है चुनाव के दौरान में, और हमें भी उतने ही लाइटली इसको लेना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, एज ए व्यूअर, एज ए वोटर, कि ये सब चुनावी हथकंडे हैं। चुनाव में जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान बटाने की कोशिश है। जो रियल इशू है जनता के, जो लाइवलीहुड के इशू है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, इन्फ्लेशन है, लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पे कौन सी पार्टी क्या प्लेटर में ऑफर करती है, ये असली मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, न कि ध्यान भटकाने वाले इशू होने चाहिए। और हर पार्टियां करती हैं इसमें, आप कांग्रेस को दोष दें, बीजेपी को दोष दें, इससे कुछ बात बनने वाला नहीं। हर पार्टी ये करती है हर इलेक्शन में। पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। एक और क्वेश्चन है शाश्वत तिवारी का जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, खासकर इसलिए क्योंकि
आपने काफी समय से बीजेपी कवर किया है, आपने अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट को भी देखा है। वो शाश्वत तिवारी जानना चाहते हैं, कैन वी एक्सपेक्ट मोदी 3.0 to have a more consensus based approach reminiscent of the Vajpayee led NDA, or should we expect more of the same assertive approach favoring the executive route similar to what we saw in Modi 2.0 and 1.0? देखिए, मुझे लगता है कि अगर वाजपेयी के गवर्नेंस से या कोलिशन पॉलिटिक्स से नरेंद्र मोदी के कोलिशन पॉलिटिक्स की तुलना करेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी के साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि वाजपेयी के पास जो नंबर्स थे 182 का जो बेस्ट नंबर उनके पास में था, जबकि नरेंद्र मोदी के पास में 240 का नंबर है। अभी भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उस पूरे अलायंस में। आप देखें कि अगर बहुमत के आंकड़े को 272 को देखें, तो इसलिए नरेंद्र मोदी वो उस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो वाजपेयी को करना पड़ा था, वाजपेयी अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडे को, जो बीजेपी का या आरएसएस का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है उसको पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उस अलायंस को चलाना पड़ा था, और बार-बार उस अलायंस में हमने देखा था कि ममता बनर्जी को मनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस जो ज़माने में कन्वीनर थे, बार-बार वो जाते थे ममता बनर्जी को मनाने के लिए, कभी उन्हें जयललिता को मनाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से जाना पड़ता था। तो वो सारे जो कंपल्शन थे, वो इस अलायंस में उस तरह के नहीं होंगे, क्योंकि आप देखें कि नरेंद्र मोदी के जो काम करने का एक तरीका है, वो है कि नरेंद्र मोदी का जो अपना ब्रांड इमेज है, और नरेंद्र मोदी अपनी ब्रांड इमेज में कभी भी उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस दिन अगर वो डाइल्यूट हो गया तो सारा जो तिलिस्म है बीजेपी का वो टूट जाएगा। और इसीलिए आपने देखा कि सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, तो आपने देखा कि आज खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे जो नेबरिंग कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। क्यों? वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, उसको वो कंपनसेट करते हैं डिप्लोमैटिक पॉलिटिक्स के जरिए। डिप्लोमेसी का नेशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करने का जो सबसे बेहतरीन नमूना अगर किसी प्रधानमंत्री ने इंडियन हिस्ट्री में उठाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो जब सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे तो भारत की डिप्लोमेसी का डंका जब वो ओथ ले रहे होंगे रविवार को, तो वो बजेगा। तो इसलिए आप उनसे ये मत उम्मीद करें कि नरेंद्र मोदी अपनी जो ब्रांड इमेज है उसको डाइल्यूट करके सरकार चलाएंगे। थोड़ी बहुत कंपल्शन वो एडजस्ट करेंगे, लेकिन अपनी ब्रांड इमेज को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी जो हिंदुत्व की जो उनकी पॉलिसी है उसको आगे चलाते हुए, गवर्नेंस के एजेंडा को आगे चलाते हुए। गिव एंड टेक होता है कि पोर्टफोलियो में आपने गिव एंड टेक कर दिया, लेकिन बाय एंड लार्ज जो उनकी पॉलिसी है उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ताकि उनकी ब्रांड इमेज डाइल्यूट ना हो। और नरेंद्र मोदी देखिए बड़े ही फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है, उनको इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई उनको शर्म नहीं आएगी कि अगर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बैलेंस करने के लिए वो उद्धव ठाकरे को फोन कर लें, उन्हें ममता बनर्जी को भी फोन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ताकि उनका जो अलायंस का कुशन कवर है वो बरकरार रहे। या फिर छोटी पार्टियां जिनके पास 1 एमपी है, 2 एमपी है, इस तरह के 15-17 एमपी हैं, उन सबको भी वो अपने साथ अब तक ला चुके होंगे, उन सबकी चिट्ठी ले चुके होंगे, ताकि वो इन अलायंस पार्टनर को बैलेंस कर सकें। I would just like to add, Jaishankar S has just asked a question which is similar to what you have already answered, but I would just like to add to that. He wants to know, can Narendra Modi manage a coalition government? Well, there's nothing in his record so far to indicate that he will not listen to his allies as such. So, that benefit of doubt has to be given. And at the same time, a lot of leaders, a lot of officers that we spoke to, are of the opinion that the new there will be a new accommodating Modi who will listen to his allies, because he knows that he wants to run this government, and there is no other option but to listen to the allies at the same time, and he knows his room for maneuvering is little limited. So as Shankar rightly said, that he will not think twice before reaching out to Mamata or reaching out to Uddhav Thackeray. So I mean, in our opinion, as well as whatever we have spoken to in terms of officers and leaders, everyone is saying that you will see a little difference in terms of his approach, but at the same time he will ensure that there is no dilution of ideology, the inherent agenda of the BJP per se, but at the same time he will ensure that some room is given to the allies. And as Shankar pointed out, this can be done in terms of giving out portfolios that these allies are asking for, or giving them the kind of numbers that they are asking for in terms of ministries and departments.
Mr. Onkar Chadda also wants to ask a question. Yes, please. Yeah, Neelam, my question is, what is RSS take on the present situation of Narendra Modi? Right. Before I answer this question, I would like to take you back to this statement that was made by Mr. Nadda, JP Nadda, who's the national president of the party. And Mr. Nadda, while speaking to Indian Express newspaper, had pointed out that, they are quite competent on their own and they do not need the RSS. Well, the RSS sources, they told us that they waited for a day and they felt that maybe a clarification will come from the BJP side that he has been misquoted or not. But the fact that it did not come, obviously it did not impact them in terms of how they were involved in the entire preparation. But my colleague Sanya Dhingra, while she was in Uttar Pradesh, she did a ground reporting. In her ground reporting, she pointed out that a number of RSS workers, committed workers who in the past have always given their 100% when it comes to elections, going door to door for the BJP candidate. This time they were not as enthusiastic. So that is definitely there. And at the same time, even within the RSS, a section of the leaders feel that, as long as at the center there is a BJP government, they're happy with that. They wouldn't have been happier if it would have been alliance government. So while definitely there was this friction between the BJP and the RSS at certain level, but definitely they're happy with the fact that the BJP government has returned, because most of the ideological issues, the agenda that the RSS had raised, they were fulfilled by the BJP, whether it is Article 370, whether it is Ram Mandir, and even the UCC, the Uniform Civil Code, is also something that has the backing of the RSS. We'll also go to Shankar, उनसे भी पूछते हैं उनका इस पे क्या रुख है. देखिए, मुझे लगता है कि ओंकार साहब, अगर आप 2019 के लोकसभा इलेक्शन को देखें तो 2019 लोकसभा इलेक्शन के बाद आरएसएस का एक स्टेटमेंट आया था. उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर क्या कहा था, वो काफी सिग्निफिकेंट था. आरएसएस का ये कहना था कि ये कलेक्टिव जो सब लोगों ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से नेशनलिस्ट फोर्सेस की जीत हुई, क्योंकि सारी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का क्रेडिट दे रही थी. आरएसएस ये मानता था कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये जीत नहीं है, बल्कि आरएसएस का जो डाउन नेटवर्क था, जो आरएसएस ने मेहनत की, उसका भी नतीजा है. अब की जो स्थिति है 2024 में, जो ये तमाम जेपी नड्डा के स्टेटमेंट के बाद स्थिति सामने दिखाई देती है. लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कंट्रीब्यूशन है आरएसएस और बीजेपी की जो रिलेशनशिप है, उसका जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है कि या जो दोनों की रिलेशनशिप में खटास क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है. बीजेपी के लिए आरएसएस क्या काम करता है, वो अपना ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉय करता है चुनाव में. अलग अलग फीडबैक के मैकेनिज्म के तौर पे उनके कार्यकर्ता, उनके स्वयंसेवक जो हैं, वो बीजेपी में लोन दिए जाते हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के रूप में, जो कि दोनों संगठनों के बीच में एक सामंजस्य का काम करते हैं. लेकिन जब वाजपेयी और आडवाणी थे तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि आरएसएस जो बीजेपी के अफेयर्स को माइक्रो मैनेज करता है. वहां पे जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मंत्री कौन होंगे, उसमें भी आरएसएस की ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी. और यहाँ तक कि दो दत्तोपंत ठेंगड़ी जो थे, उन्होंने तो वाजपेयी का जीना मुहाल कर दिया था. आप देखें उस जमाने में सुदर्शन साहब ने तो ये कहा कि इन दोनों बुढ़ों को रिटायर हो जाना चाहिए, इन्हें पब्लिक लाइफ से अब इनका टाइम हो गया, यंगर लोगों को मौका देना चाहिए. उसके बाद आडवाणी ने 2005 का जो उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो सबसे एक रिमार्केबल स्टेटमेंट है, जब आडवाणी ने कहा कि ये एक पब्लिक परसेप्शन जनता के दिमाग में बैठा है कि आरएसएस बीजेपी के अफेयर्स में दखल देता है, माइक्रो मैनेज करता है. ये परसेप्शन आरएसएस के लिए भी अच्छा नहीं है, बीजेपी के लिए भी अच्छा नहीं है. दोनों एक अलग एंटिटी है. आरएसएस एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है. तो वो जो डिफाइनिंग मोमेंट था, बाद में आरएसएस ने नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनवाया. नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है 2019 के बाद, नरेंद्र मोदी ने किया कि जो आरएसएस का माइक्रो मैनेजमेंट था बीजेपी में, उसको कर्टेल करना शुरू किया.
जब बीएल संतोष अध्यक्ष बने उसके बाद जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट होते थे, जो आरएसएस का स्वयंसेवक आता था बीजेपी में, उसको उन्होंने संख्या घटानी शुरू कर दी। पहले 4 होते थे, वो आज की तारीख में 1 है, शिव प्रकाश बचे हुए हैं। बाकी जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी थे ऑर्गेनाइजेशन के, उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एलिवेट कर दिया गया। वैसे ही राज्यों में भी जो आरएसएस के प्रचारक होते थे उनकी संख्या कम की गई। जो माइक्रो मैनेजमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री में या दूसरी मिनिस्ट्री में होता था उसको उन्होंने कटिल करना शुरू किया। सिर्फ आरएसएस का जो दखल है 2 मिनिस्ट्री में बचा रह गया, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री और कल्चरल मिनिस्ट्री। चूंकि ये आरएसएस के आइडियोलॉजिकल एजेंडे के काफी करीबी मंत्रालय हैं, तो इसलिए वहां पे उनको छूट मिली, लेकिन बाकी मंत्रालय में उनका माइक्रो मैनेजमेंट कम हो गया। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में तो नरेंद्र मोदी ने ये काम तो 5 साल पहले कर दिया था, उसको सिर्फ जेपी नड्डा अपने स्टेटमेंट के जरिए स्लिप ऑफ द टंग बोल गए, या फिर आप उसको कहें कि एरोगेंसी में बोल गए, जिसका कि नुकसान इलेक्शन में बीजेपी को उठाना पड़ा। जी शंकर, एक और प्रश्न है, अगर आप उसको आंसर कर सकें। विल वन नेशन वन इलेक्शन, विल इट सी टेकिंग शेप इन दिस, सॉरी जी देखिए, इसमें जो जेडीयू का पर्सपेक्टिव है, जेडीयू ने कहा है कि उन्हें इस पे कोई दिक्कत नहीं है। जेडीयू को वन इलेक्शन पे भी, वन नेशन पे भी दिक्कत नहीं है, यूसीसी पे भी जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है। जो आपत्ति आनी है वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आनी है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए पहले आपको डिलिमिटेशन करना होगा, जहां पे साउथ इंडिया में बवाल हो जाएगा कि अगर साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएंगी तो साउथ इंडिया की सारी पॉलिटिशियन, सारे चीफ मिनिस्टर उसका विरोध करेंगे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू भी आते हैं। उसके बाद डिलिमिटेशन अगर नहीं होगा तो फिर वन नेशन वन पोल कैसे होगा? उसके बाद किसी भी चीफ मिनिस्टर को आप कैसे कहेंगे कि भाई जिसने अभी शपथ ली है और 2 साल के अंदर वो अपने स्टेट के लेजिस्लेचर को भंग कर दे। चंद्रबाबू नायडू क्यों तैयार होंगे इस बात के लिए कि 2 साल वही पावर में रहने के बाद वो वहां पे लेजिस्लेचर को भंग करके नए इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए? तो इसलिए वन नेशन वन पोल का जो एजेंडा है, मुझे लगता है कि वो ठंडे बस्ते में चला गया है फिलहाल, और 2029 के बाद जो सरकार के पास मैंडेट आएगा उसके बाद ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल लागू होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। So you're clearly saying that one nation, one election, this definitely was BJP's big agenda. It was there in their manifesto, but so far, because of the changed power dynamics and the coalition that government that we are going to see, it's definitely a setback for that as far as we can see. So we are trying to answer your questions in Hindi and English as much as possible. There's a question that was sent to us, which is in Hindi. I'll try to answer it in English also. Just one second. Yes, Satyam Kumar wants to know, कुछ लोग मोदी जी को मिली हार के पीछे का कारण यह भी बता रहे थे कि बीजेपी एरोगेंट हो गई थी, इसलिए वो हारी, ना कि ऑपोजिशन का कोई खास मेहनत था, क्योंकि ऑपोजिशन के पास कोई नैरेटिव ही नहीं था. वेल सत्यम, a section within the BJP definitely feels that the party had become arrogant. I mean, opposition can definitely accuse it, but within the BJP also this is something that was being talked about, and it was reflected in the phrase 400 par, more than 400 seats for the party. And the statement made by JP Nadda, the party president, we've already talked about that, barely when 2 or 3 phases were left, it was not required. Many feel within the BJP as well as the RSS that this seems to have hurt the party too. It affected their morale, the way they were motivated, it affected that. And many feel there was no need for such a statement at that juncture. In fact, the Print had done a story, we will share it with you, when the party realized that the 400 par phrase was not being taken too kindly by the public, and it was being viewed as something which the BJP wanted to have to change the constitution or to do away with the reservation. PM Modi actually made course correction. He stopped using that phrase in his rallies. We looked at all of the rallies conducted by PM Modi, and we realized that while in the initial phases he was using that term 30-40 times, it got reduced to 0. So definitely, as far as BJP is concerned, it realized that, in the starting phases, that phrase was being used. In the latter phases, they realized that, we shouldn't be talking too much about it. It was already being criticized. The opposition had already made it into a major issue that the BJP wanted to achieve 400 to change the constitution, to take away the rights given under the constitution. I'm not really
you're saying that there was no narrative as far as the opposition is concerned. Well, the opposition was definitely raising some important issues, whether it's the changing the constitution, reservation, unemployment. I mean, initially, how much they resonated is something that can be questioned, but it will not be true to say that the opposition was not raising questions at all. I will now move on to another question for Shankar. Shankar, Omkar, okay, we have already taken one from you. Yes, Girish Kudale wants to know, now Prashant Kishore seems to have lost his relevance, he says, and track as well. Please comment. This is definitely in relation to जो उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूरी बहुमत के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. देखिए, इसमें मुझे लगता है कि किसी भी पोलस्टर को ये कहना कि उसके आंकड़े गलत हो गए तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई या वो एक्सपोज हो गया. कई बार आपके सैंपल साइज छोटे होते हैं. कई बार ये भी होता है, खास करके अगर प्रशांत किशोर के संदर्भ में मैं ये बात कहूं कि प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई सर्वे किया या फिर उन्होंने रॉ डेटा कहीं से कलेक्ट किया होगा. वो एक अपनी सिर्फ ओपिनियन बता रहे थे एक्सपीरियंस के आधार पर. अगर उन्होंने सचमुच डेटा इकट्ठा करके ये सारी बातें कह रहे थे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं. लेकिन जिन पोलस्टर ने डेटा इकट्ठा करके ये आंकड़े दिए, उन पे सवाल उठाना लाजमी है. इससे जुड़ा हुआ एक मैं थोड़ा किस्सा बता दूं. मैं एक टेलीविजन चैनल में काम करता था और उस समय इन्हीं एजेंसियों में से एक एजेंसी ने हमारे टीवी चैनल के लिए सर्वे किया था जब वाजपेयी की सरकार थी 2004 में. तो उस एजेंसी ने जो आंकड़े दिए, वो आंकड़ा हमें लग रहा था कि मोर और लेस रियलिस्टिक आंकड़ा है. लेकिन उसे रिलीज करने से पहले कुछ सरकार की तरफ से उस एजेंसी के ऊपर दबाव आए कि वो आंकड़ा बहुत कम दिखा रहे हैं और इस आंकड़ा को आप रेक्टिफाई कीजिए. उस एजेंसी ने उस आंकड़े को बढ़ा दिया, यानी कि उसमें 40 सीटें ऐड कर दी और फिर उस एडेड सीट के साथ हमें उस सर्वे को ब्रॉडकास्ट करना पड़ा. तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं, जो ओपिनियन पोल सर्वे करती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा क्वेश्चन में रही है. और उसमें से एक दो एजेंसी को छोड़ दिया जाए जिनका की सैंपल साइज काफी बड़ा होता है. ज्यादातर के जो सैंपल साइज होते हैं बहुत छोटे होते हैं. उनके प्रश्न पूछने का जो तरीका है, वो जब वोटर के पास जाते हैं, वो किस तरह से सैंपल इकट्ठा करते हैं, कौन से सवाल पूछते हैं, क्या वो सचमुच डाइवर्स उनका सैंपल साइज होता है या एक ही गांव से जाके इकट्ठा कर लिया, एक ही कॉलोनी से इकट्ठा कर लिया, एक ही बूथ से इकट्ठा कर लिया. तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं उस एग्जिट पोल के नतीजों को प्रभावित करते हैं. और कई बार जैसा कहते हैं कि राजा को खुश करने के लिए आप कह देते हो कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है. तो उस तरह से आप अपने सर्वे के नतीजे भी बताते हो. तो मुझे लगता है कि इस तरह की कहानियां भी होती है एग्जिट पोल के जो पोलस्टर हैं उनके पास में. जो पोलस्टर का सैंपल साइज बड़ा है, उसका अगर सर्वे कई बार इसलिए गलत हो जाता है कि कई बार पोलस्टर जो होते हैं वो किसी पार्टी के साथ भी अलाइंड होते हैं. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप संकेतों में समझ जाएंगे कि कई बार वो पार्टी के लिए भी पोल कर रहे होते हैं. और चूंकि उनका इकोसिस्टम लगातार ये कह रहा होता है कि बीजेपी वहां पे जीत रही है, टीएमसी जीत रही है, तो उनका प्रेडिक्शन या उनका जो नतीजा होता है उस इकोसिस्टम से इन्फ्लुएंस होने के कारण वो गलत हो जाता है. ज्यादातर अपोजिशन रूल्ड स्टेट में या फिर अपोजिशन का जहां पे पुल फैक्टर होता है जिस चुनाव में, जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी के चुनाव में इस बार जो पुल फैक्टर था वो समाजवादी पार्टी के पास में था. लेकिन अगर आप बीजेपी के इकोसिस्टम में घुसे हुए हैं या फिर वहां से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, बीजेपी के लिए मैंने सर्वे किया था तो वहां पे तो मुझे आंकड़ा दिख रहा था 70 सीट का. लेकिन चूंकि आपने क्रॉस उसके अपोजिट वाला जो व्यूज है उसको बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, तो इसलिए आपके वेस्ट बंगाल में एग्जिट पोल गलत हुए, इस तरह से यूपी में गलत हुए. तो ये भी कई फैक्टर काम करते हैं एग्जिट पोल में. I will take one last question of Antariksha Abhishek before we go to Omkar. She had asked that what will be the growth factor issue for common man and microeconomics indicators for the development? Well, you know, average GDP growth under coalition government, which is let's say 1989 to 2014 period, was higher than the stable governments before that or after that. The growth issue will more or less remains the same as they have been in the last few years, whether it's low private investment, low household consumption, and over dependence
dependence on government expenditures. Well, my colleague Sharad Raghavan has done a deep dive on this issue which you must read. In fact, my understanding of all these issues has come from that. And now I'll just go to Omkar for the last question. Yes. I think he can't hear me. शंकर, फिर एक लास्ट प्रश्न आपके लिए कैलाशनाथ राधाकृष्णन का है. वो जानना चाहते हैं, if the India alliance had worked with cohesion much earlier, could they have been better? क्या एक साथ जुट के काम करते पहले से तो रिजल्ट अलग आता? वो ये भी जानना चाहते हैं, was there lack of coordination within the BJP central team and state teams, especially in UP, West Bengal and Rajasthan? देखिए, निश्चित रूप से अगर इंडिया अलायंस काफी पहले से इस काम को करता, 2 साल पहले से वो तैयारी कर रहे होते, तो उसके नतीजे और बेहतर आ सकते थे. चूंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, उन सबके बहुत कई सारी पार्टियां हैं जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कई सारी पार्टियां हैं जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं अलग अलग राज्यों में. तो वहां पे कोहेजन या फिर बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन बिठाना काफी मुश्किल काम था. लेकिन अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले आते तो हो सकता था और बेहतर नतीजे आते. कुछ जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट हैं वहां पे और वो चौंकाने वाले नतीजे दे सकते थे, मसलन राजस्थान में या फिर बिहार में, वेस्ट बंगाल में, इन सारे राज्यों में. जहां तक बीजेपी के सेटबैक की बात है तो उसके ढेर सारे कारण आने वाले दिनों में उसकी समीक्षा हो रही है कि वेस्ट बंगाल में पूरी नैरेटिव कैसे चेंज हो गई, किस तरह के वहां पे लीडर्स के बीच में इनफाइटिंग थी. वहां पे जो 2 धड़ा है, एक शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ओल्ड गार्ड का जो पुराना धड़ा है, उसमें दिलीप घोष ने तो साफ ही कहा है एक तरह से कि उन्हें बैकबाइटिंग वर्ड उन्होंने यूज किया है. बिल्कुल. तो एक जिस तरह की कोऑर्डिनेशन की उम्मीद की जानी चाहिए थी, जिस तरह का उन्होंने असेंबली पोल लड़ा था, उस तरह का लगता है कि कोहेजन नहीं था. दूसरा कि नैरेटिव में भी जो वेस्ट बंगाल में नैरेटिव बीजेपी ने इस्तेमाल किया कि पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स थी, उस पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो वेलफेयर मॉडल था वो भारी पड़ा. उसी तरह से आप देखेंगे राजस्थान में गहलोत सरकार की 2 स्कीम जो काफी पॉपुलर थी, जो चिरंजीवी स्कीम था, उसमें 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट मिलता था. भजन लाल सरकार ने आने के बाद उसको रिड्यूस करके उसको आयुष्मान स्कीम के साथ क्लब कर दिया, यानी कि 5 लाख ही मिलेगा. तो जनता का जो बैकलैश था उस मुद्दे पर भी था, क्योंकि जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे वहां में उन्हें फ्री ट्रीटमेंट 25 लाख का मिलता था. दूसरा जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का जो गहलोत सरकार ने किया था, उसको भी नई रजिस्ट्रेशन भजन लाल सरकार ने बंद कर दिया. तो इस तरह की जब वेलफेयर स्कीम के साथ कोई भी सरकार बदलती है और उसके साथ में वो अपना ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, तो जनता उससे अफेक्टेड होती है. उसी तरह से आप देखेंगे जिस तरह से इंडिया अलायंस ने जो प्रॉमिस किया कि वो महिलाओं को जो पैसा देंगे, 5 जून को क्रेडिट हो जाएगा, तो महिलाओं को और जो भी एंड यूजर है, वो आज की तारीख में वोटर जो है वो बहुत ही ट्रांजेक्शनल है. वो ये नहीं देखता कि विकसित भारत 2047 में बनेगा, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी, तब उसको क्या फायदा होगा. वोटर देखता है कि आज की तारीख में मुझे क्या मिल रहा है. अगर मुझे 1000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, आज की तारीख में मुझे फ्री राशन मिल रहा है, आज की तारीख में मुझे चिरंजीवी स्कीम का फायदा मिल रहा है, तो मैं उसको वोट क्यों न दूं. तो मुझे लगता है कि ये सारे गुफक जो थे, वैसे ही यूपी में आप देखें कि नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले अगर फर्स्ट टेनियर, सेकेंड टेनियर और थर्ड टेनियर की अगर मिला लें, आप बिहार की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की? बिल्कुल, सरकारी नौकरियों में जिस तरह का उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया, अभी पिछली सरकार में 4 लाख उन्होंने टीचर्स की नियुक्ति की, उससे पहले भी वो 4 लाख भर्ती कर चुके थे. योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी नहीं किया. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करने के लिए वो कम से कम इतने बड़े स्टेट में 10 लाख 20 लाख लोगों की नियुक्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. तो इसका मुझे लगता है कि ये सारे बैकलैश, ये सारे मुद्दे जो थे उन पे भारी पड़े. एक इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, मैंने राजस्थान की भी रिपोर्टिंग की थी, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए वहां गई थी. खासकर जो एक इनएक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर जो थे और वसुंधरा राजे की जो साइडलाइनिंग एक तरह से की गई राजस्थान में, उसका भी खामियाजा उनको झेलना पड़ा. ज्यादातर जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो शेखावत हो, सीपी जोशी हो, वो अपने ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने में लगे थे. तो एक तरह से ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो ओवरसी करना चाहिए कैंपेन को, वो नहीं कर पाए. उसके अगर विपरीत अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे, जहां बीजेपी ने स्वीप किया है, वहां पर जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उनको नहीं चेंज किया गया था इलेक्शन के मद्देनजर. वहां पर आप देखेंगे कि सारे एक तरह से एक पूरा स्कीम बनी थी कि किस तरह से ऑपोजिशन को कैसे डेंट किया जाए फर्दर. उसके बावजूद, उसके अलावा आरएसएस के साथ भी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती थी, जहां वो और प्रदेशों में नहीं हो पाई, वो मध्य प्रदेश में हुई और उसका एक तरह से नतीजा आपको देखने के लिए मिला. ओमकार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. ओमकार, कैन यू प्लीज आल्सो स्विच ऑन योर वीडियो
and ask your question. Omkar as well as Kamal. Yes. Am I audible, Neelam? Yes, you are. Yes, you are. Okay. Yes, you are. Mera question. And also switch on Shankar, your video if you don't mind, if that's okay. yeah. Where do I see that? It's on our screen, just near the audio, it will say video. Just near the audio. I'm not able to see. Neelam, No worries, you can this ask. moment. Please, no problem, you can ask your question. I think his audio is having some problem. Kamal, would you like to ask your question? My question is relating to the commitments made by Prime Minister Modi on behalf of the country at COP26, which said we will become net zero by 2070 and reduce carbon by 45% by 2030. The question is that this cannot be done or achieved unless every municipality declares a carbon budget each year along with their financial budget, because most of the carbon is coming from cities. Now, this will require the support of all the opposition. The question is, can there be a common agenda with respect to climate change for the next generation? Can there be a common agenda for various national issues which are good across the board, whether it is Party A or Party B or Party C? And will there be an effort made on a common agenda? For example, Germany has coalitions, Mexico has had coalitions, and they agreed on a common agenda. And that's how they move forward. So that is the first question. Right. A comment I would like to have from you is that, which has not been talked about, what if there is a snap poll and the party, today it's really a theoretical question and not a practical one because they've already agreed to support each other. But a snap poll could have been a possibility in terms of going back to a quick poll, A. And B, what if the BJP let the India coalition rule the country and then see what happens? And they be a 240 party opposition could sit and check on each move which they made. That's for you to comment. शंकर, क्लाइमेट चेंज के बारे में वो जानना चाहते हैं, आपको लगता है क्या वो एक ऐसा एजेंडा है जिसपे ऑपोजिशन भी साथ देगी बीजेपी गवर्नमेंट का, कोalition गवर्नमेंट का? देखिए, इस इशू पे दोनों जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे अपोजिशन हो या सरकार हो, दोनों के अपने इस पे डाइवर्जेंट व्यू हैं। जो भारत सरकार का व्यू है या फिर बीजेपी का जो व्यू है, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी तरजीह दी है, चाहे आप कॉप्स सम्मेलन से लेकर तमाम इंटरनेशनल जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन पे इंडिया का स्टैंड रहा है, तो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो व्यू है वो काफी रियलिस्टिक है। लेकिन कांग्रेस का जो व्यू पॉइंट है, तो मुझे नहीं लगता कि इस इशू पे कोई बहुत ज्यादा आप अपोजिशन से सपोर्ट की उम्मीद करें, क्योंकि जब भी कोई सरकार अपने ढंग से अपने एजेंडे को, नैरेटिव को इंटरनेशनल फोरम पे या फिर किसी भी मंच पे अडॉप्ट करने की कोशिश करती है, तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसमें कुछ न कुछ खामी, तकनीकी गलतियां निकालती रहेंगी। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसपे कि सारी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि अगले शताब्दी का जिसकी हम शुरुआत हम देख चुके हैं कि वो एक सबसे बर्निंग इशू है, जिसपे कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इशू हैं जो आपको कहते हैं कि आप धरती रहेगी, पृथ्वी रहेगा, तभी आप भी बचेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज पे सारी पार्टियों को इकट्ठा होना चाहिए। एक जो आपकी सवाल का एक जो दूसरा पार्ट था, जो आप स्नैप पोल, जी, देखिए, मुझे लगता है कि इस पे सुशील मोदी जब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। उस पे एक बार हुआ कि स्नैप पोल कराने की बात नीतीश कुमार चाहते थे और बीजेपी का वो व्यू लेना चाहते थे। तो बीजेपी का कहना था कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को कहा कि सिगरेट की आखिरी कस तक सिगरेट का मजा लेना चाहिए, यानी कि जो पावर है उसको आखिरी मोमेंट तक एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी स्नैप पोल में जाने में, खास करके बीजेपी, इंटरेस्टेड नहीं होगी। वो जो पावर, उन्हें जो मैंडेट मिला है उसके साथ में वो गवर्न करेंगे, जो अलायंस पार्टनर हैं उनको एकोमोडेट करेंगे,
क्योंकि हर पार्टी की अपनी जो शर्तें होती है उसको डेमोक्रेसी में एकोमोडेट किया जा सकता है। जो उसकी एस्पिरेशन है, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको वो एकोमोडेट कर सकती है बीजेपी। और उसमें अगर चंद्रबाबू नायडू को अपने कैपिटल बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, उन्हें स्पेशल पैकेज की जरूरत है, उन्हें मंत्री पद चाहिए, तो ये सारी चीजें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। क्योंकि स्नैप पुल करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैंडेट आपके पास कैसा आएगा। तो इसलिए कोई भी पार्टी जो पुराना इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए स्नैप पुल में जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, जब तक कि आपको इस बात की गारंटी हो कि मैंडेट मुझे इससे बड़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वो रिस्क लेगी। जो मैंडेट है उसके साथ में वो गवर्न करेंगे, ठोक बजा के पूरी तरह से सरकार चलाएंगे। और वैसे भी उन्होंने कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल उससे इसका कोई लेना देना नहीं। तुषार त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तुषार जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? शायद उनको सुनाई नहीं दे रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ विजय नारायणन का। शंकर वो जानना चाहते हैं, do you think that one of the key blunders committed by the BJP was that they ignored economic factors impacting common man in their re-election process, but relied only on Hindutva and the achievement of building temple and infrastructure? Well, इससे पहले कि आप इसको आंसर करें, इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मैं देना चाहूंगी। If you must have noticed that BJP lost the Faizabad seat where Ayodhya temple is constructed. We had done a lot of ground reporting from there, and we found out that people were quite unhappy with the demolitions of their houses, which was required for the infrastructure that had to be created. At the same time, key issues, which is, as I pointed out, that kapda roti, makan, those were issues that BJP thought that it has already, it has already been able to give the people that in terms of free ration, in terms of solar that PM talked about. He thought he will be able to counter the freebies by those aspects. At the same time, you've asked about that economic factors which impact common person. Well, as Shankar was talking about earlier, in the context of UP, a number of contractual teachers were unhappy. They had been demanding that they be made permanent. They had been working for several years, and despite that, they were not given any surety as far as their employment is concerned. Apart from that, the focus was on, let's say, Kashi Vishwanath, Ram temple construction, which is not wrong. It should be, our temples should be, reconstructed, or the infrastructure which is required should be created. But at the same time, the core issues, as Vijayan also said, which impacts people, those core issues have to be taken into account. तुषार त्यागी जी, आप अभी भी म्यूट पे हैं, मैं आपका प्रश्न पढ़ दूंगी। इससे पहले शंकर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर आप CSGS के पोस्ट पोल जो आंकड़े आज आए हैं उसको अगर आप रीड करें तो उसमें साफ ये कहता है कि हिंदुत्व का भी एक फटीग फैक्टर होता है, जो कि इस इलेक्शन में वो दिखा। हिंदुत्व का जो सर्ज था वो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा डिविडेंड इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। डिस्पाइट दैट कि राम टेम्पल एक इशू था और लोगों को लगता है कि चलो मोदी सरकार अगर नहीं रहती तो राम टेम्पल नहीं बनता। लेकिन अगर 2019 और 2024 के आंकड़ों को देखें कि लोग प्रधानमंत्री की वजह से वोट करना चाहते हैं, उसमें भी वो नंबर डिक्लाइन हुआ है। तो आप देखें कि जो इकोनॉमिक इशू हैं, जो हार्ड रियलिटी है, जो लोगों के असली मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में डोमिनेट किया है। क्योंकि आप देखें कि ये इलेक्शन वेव का इलेक्शन नहीं था। 2019 का जो इलेक्शन था वो सर्जिकल स्ट्राइक का इलेक्शन था। 2014 का जो इलेक्शन था वो एस्पिरेशनल इंडिया का इलेक्शन था। अच्छे दिन आएंगे, मनमोहन सिंह सरकार की करप्शन के इशू से पूरा देश जूझ रहा था, और नरेंद्र मोदी ने उस पूरे कैंपेन को इस तरह से लीड किया कि मैं आकर नौकरियों की बहार कर दूंगा, बौछार कर दूंगा, अच्छे दिन लोगों के आ जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन था वो वेवलेस इलेक्शन था, जहां पर जो एक्चुअल जो इलेक्शन 2014 से पहले होता था, असली मुद्दों पर, लोकल इशू पे आपने किस तरह के कैंडिडेट उतारे, उसकी कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, कास्ट फैक्टर प्ले करता है, तो वो सारे फैक्टर प्ले करने की वजह से जब आपके पास लार्जर नैरेटिव नहीं होता है तो वो फिर इलेक्शन कास्ट में फंस जाता है, क्लास में फंस जाता है, जो इस इलेक्शन में हुआ। तो इसलिए आपके जो हार्डर रियलिटी है, इकोनॉमिक इशू, वो डोमिनेंट हो गए।
आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी भी तो वेलफेयर की पॉलिटिक्स चला रहे हैं, इतनी सारी स्कीम है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने वेलफेयर की स्कीम, फ्री राशन से लेकर तमाम मुद्रा स्कीम और तमाम ऐसी योजनाओं की बौछार की है, लेकिन उसकी फाइन ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है। और भी आप देखें कि 2018 में जब बीजेपी 3 स्टेट के इलेक्शन हार गई थी, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत किसान सम्मान निधि लॉन्च कर दिया, लेकिन किसान सम्मान निधि में कोई उसकी बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो उस समय का रकम था वही आज भी चल रहा है। पूरी जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो गुस्से में है, उनका घर खर्चा नहीं चल रहा, उनकी जो फसल होते हैं उससे उसका रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा। तो आपको जो वेलफेयर स्कीम है उसकी फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, उसमें एडिशन करना पड़ेगा। आप सिर्फ इस आधार पे इस आर्गुमेंट को नहीं जीत सकते कि मैं फ्री भी नहीं करता। अरे फ्री भी तो आप भी कर रहे हैं, आप भी तो फ्री राशन दे रहे हैं, आप भी तो जो मध्य प्रदेश में पैसे बांट रहे हैं लाडली लक्ष्मी इस योजना में, तो फ्री भी कह के आप सिर्फ बच नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे जनता को जब उसकी हार्डशिप है, उसका घर नहीं चल रहा है इन्फ्लेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा कि जो रूरल डिस्पैरिटी है, जो रूरल फॉल्ट लाइन है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। और जो यूथ है, जो अर्बन यूथ है, रूरल यूथ है, जिसके पास एक नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए। साउंड ही चली गई। Ji. Mr. Jayesh, you can switch on your video and ask your question if you can hear me. Mr. Jayesh Goswami, are you able to hear me? Yes, Neelam, I can hear you. Can you just switch on your video also? Unfortunately, I cannot switch on my video. Okay. However, yeah, I have a very quick question that I would want to address you. I would want you guys to address, because quite recently, since I am a member of the print as well as I'm a member of the Wire also, because I believe supporting independent journalism. And I saw Prashant Kishore being interviewed by Mr. Karan Thapar, which made a lot of headline. I'm sure since you are in the media, you might be aware of that situation. So I would want you to address that issue. And also, do we see Prashant Kishore being interviewed on the print in the near future? And how do we expect his behavior to change from the time that, since it was being pointed at Karan Thapar's interview that his predictions were wrong at a certain period of time in which he behaved very abruptly. Do we see that kind of behavioral change also going ahead in the future? That is what my question to the panel is. Jayesh, my colleague Shankar had given a long reply on that, but just to add, really sorry. No, that's okay. We will repeat it for you. But just to add, we have interviewed Prashant Kishore in the past. And at the same time, just because he's got this election wrong, and as Shankar was saying that I don't think he had gone on ground and did any sort of exit poll. It was actually more or less rather his opinion, informed opinion, that he had shared, and obviously, as you rightly pointed out, it had become a major issue. But Shankar had answered this question. I will ask Shankar to elaborate a little more on this. कई बार क्या होता है कि देखिए पॉलिटिक्स में जो ह्यूमिलिटी है, किसी के लिए भी ओपिनियन मेकर हो, वो एग्जिट पोलस्टर हो, पॉलिटिशियन हो, उनके लिए ह्यूमिलिटी, मैंडेट को स्वीकार करना, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी होती है। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा मैंने किसी पार्टी को इलेक्शन में कोई स्ट्रैटेजी बना दी तो उससे पार्टी जीत गई। ऐसा होता नहीं है। पार्टी अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव, अपना जो ग्राउंड वर्क, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जो लीडरशिप है, उसके आधार पे जीतती है। आप सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं, उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये गलतफहमी पाल लें कि मेरी वजह से ये पार्टी जीत गई, टीडीपी जीत गई, मेरी वजह से बीजेपी जीत गई, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा उस पार्टी के लिए भी अन्याय होगा और उस पोलस्टर के लिए भी अन्याय होगा। अब जिस तरह के प्रशांत किशोर ने पूरे इस दौरान में जो सारे इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने जिस तरह की बातें की, उन्होंने जिस तरह से तेजस्वी यादव का मखौल उड़ाया, ममता बनर्जी के लिए उन्होंने बातें कही, अखिलेश यादव को उन्होंने रिडिक्यूल किया, तो मैंडेट ने तो एक तरह से पूरी तरह से उन्हें रिडिक्यूल कर दिया है। उन्होंने मैंडेट ने दिखा दिया है कि भाई जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ये मान लेना कि ये खत्म हो गई, इसके पास कोई एजेंडा नहीं है, सीटें नहीं जीतेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी थी और शायद इस मैंडेट से प्रशांत किशोर को भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से एक ह्यूमिलिटी के साथ अपना काम करना चाहिए, और खास करके एक ऐसे समय में जब वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल मंच बिहार में चला रहे हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि 2025 के चुनाव में
कोई पार्टी नहीं जीतेगी, सिर्फ उनकी जो पार्टी है, जो उनका मंच है, वही चुनाव जीतेगा। तो ये मुझे लगता है कि उनके लिए और ज़रूरी है कि ह्यूमिलिटी के साथ वो जनता के बीच में कनेक्ट करें। Sorry, you can hear me now. Mr. Tushar Tyagi is saying that he has to be on mute, but his question is it right to call this election Congress's revival when it has secured only 100 seats, as this is a national level party we are talking about? Is the opposition too happy too soon? Well, to be fair, in the past two elections, the Congress had performed poorly, so the expectations obviously are from that. At the same time, Congress has performed much better in Uttar Pradesh. In Telangana also, they have managed to get 8 seats. If you look at Rajasthan, where the BJP had been sweeping for the past two terms, it has managed to get 8 seats there. As far as Congress is concerned, the Congress story also has to be seen in terms of that, despite the criticism they received in fielding Mr. Sharma from Amethi, a lot of people said that, he's a proxy candidate. Rahul Gandhi himself should have contested, and if not Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra should have taken the baton. But still, despite that, the party was at it, and now KL Sharma becoming that giant killer. From 20 in the previous term we saw Smriti Irani defeating Rahul Gandhi, and now we have seen KL Sharma defeating Smriti Irani. So from that perspective, you have to see the performance of the Congress. Of course, there's much more that the party has to achieve in terms of different states. In Odisha also, they have performed better than the past, but there are certain areas, including Delhi, where they have not been able to register any increase in that tally. There are other significant states like Madhya Pradesh, where the BJP was able to sweep the state this time. Even Chhindwara, one seat that they had won in 2019, this time round, which is considered a major turf of former Chief Minister Kamal Nath. They were not even able to hold on to that. But at the same time, as you also say, this is a national party. The expectations will be more, but we have to see where they are coming from in terms of the past two terms. So when the kind of praise that the party is getting is in context. If you have to see everything in context, no one is saying that they have done better than the BJP. BJP is still the single largest party. It has still got 240, which is much more than the entire opposition bloc, India bloc together. Shankar, anything to add to that? No, मुझे लगता है नीलम आपने सवाल को एड्रेस कर लिया है। कोई हम लास्ट में एक दो सवाल और अगर हमारे पास बचे हुए हैं तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जानना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के बारे में अगर आप थोड़ी सी बात करें, और इस डेबिकल के बाद शुभेंदु अधिकारी क्या जिस तरह का उनका क्लाउड है, उसमें कोई कमी आएगी, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए शुभेंदु अधिकारी इस समय बीजेपी के लिए बेस्ट बेट हैं, और जो लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई है, आप असेंबली इलेक्शन से लेकर लोकसभा इलेक्शन में भले ही बीजेपी को सेटबैक मिला हो, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से काम नहीं करती कि आप एक इलेक्शन हार गए तो उस पॉलिटिकल लीडर को आप हटा दो, उसके खिलाफ एक्शन ले लो। क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी को हराना उनकी कंस्टिट्यूएंसी में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और जिस तरह से वेस्ट बंगाल में बीजेपी को एक नेतृत्व देने में, एक लीडरशिप पोजीशन लाने में शुभेंदु अधिकारी का रोल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह इतना बड़ा कोई ब्लंडर करेंगे शुभेंदु अधिकारी को खत्म करके या उनके क्लाउड को कम करके, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह के वेस्ट बंगाल में जो अमित शाह की प्रायोरिटी स्टेट है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे प्रायोरिटी स्टेट थे जहां पर बीजेपी का कमल उनको एक्सपैंड करना है। उड़ीसा में तो बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी अभी भी सत्ता से दूर हैं, और उनके पास उस तरह का शुभेंदु अधिकारी के पैरेलल कोई लीडरशिप नहीं है। लेकिन सिर्फ उसमें जो ओल्ड गार्ड है उनको भी सामंजस्य, उनको भी साथ लेकर चलना होगा। ये शायद शुभेंदु अधिकारी की कमी आप कह सकते हैं, लेकिन कई बार पॉलिटिक्स में ये भी होता है कि आप देखें कि जो पुरानी लीडरशिप है, जो एक तरह से जिन्होंने अपना डिलीवर कर लिया है, 50 साल पहले की उन्होंने पॉलिटिक्स की है, उन्होंने अपने जमाने में पॉलिटिक्स कर ली है, मसलन तथागत राय के बारे में अगर हम कहें, लेकिन अगर आज भी वो चाहें कि वो वेस्ट बंगाल की बीजेपी की पॉलिटिक्स को गाइड करें, उसे कंट्रोल करें, तो ये सही नहीं होगा। हर जनरेशन को अपना काम करने देना चाहिए। आज की तारीख में शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं,
तो पूरी पार्टी को उन्हें बैक करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन और बेहतर होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बारे में बार बार जो शिकायत आती है कि अभी भी वहां पे बूथ पे जो बीजेपी का पेनिट्रेशन है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट है। उसकी अलग वजह है, वहां पे जिस तरह का ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स है जो बीजेपी एलिज करती है कि उनके लोग बीजेपी के लोगों को तोड़ लेते हैं, तो वहां पे बूथ पे पेनिट्रेशन होने की जरूरत है। उनकी जो बूथ कमिटियां हैं वो और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जब सुनील बंसल वहां के इंचार्ज थे तो उनसे एक बार मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि जो आपका टारगेट था बूथ पे पेनिट्रेशन का कितना अचीव किया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 30% अचीव कर पाए हैं। तो जब उसको 70% 80% पे ले जाएंगे तब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जो ग्रोथ स्टोरी है जो शुरू हुई है और बड़े मोमेंटम पे थी, इस बार थोड़ा सेटबैक लगा है, लेकिन उसको और वो आगे ले जा सकते हैं अपने नैरेटिव में थोड़ा सा बदलाव करके और फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में और एक्सपैंड करके। शंकर, एक आखिरी प्रश्न जो हम ले रहे हैं, इसके बाद मतलब हमें रैप करना पड़ेगा। रविंद्र मिथे जानना चाह रहे हैं, हाउ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स विल पैन आउट नाउ। आपने देखा होगा किस तरह का एक मिक्स बैग आया है, खासकर कांग्रेस के लिए एक तरह का रिवाइवल वहां दिखा है। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये तक कह दिया है कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेते हैं। किस तरह से आप इस पूरे स्टेट को देख रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र का जो मैंडेट है वो साफ दिखाता है कि ये जो अलायंस है जिसके साथ में बीजेपी इस लोकसभा में लड़ी है, उसके साथ में वो असेंबली इलेक्शन में जाना बहुत ही रिस्की होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे पास में सिंपैथी वेव है, और उस सिंपैथी वेव के आधार पे शरद पवार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अजित पवार को सिर्फ 1 सीटें आई, उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये अलग बात है कि शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी स्टेट मशीनरी उनके पास में है, उनके पास सिंबल है, सब कुछ होने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया। ये अलग बात है कि स्ट्राइक रेट बेहतर है शिंदे का उद्धव ठाकरे की तुलना में, लेकिन इस अलायंस के साथ में बीजेपी अगर असेंबली पोल में गई तो बहुत ही रिस्की अफेयर होगा। तो बीजेपी को महाराष्ट्र का जो फाइन ट्यूनिंग करना होगा, वहां पे सर्जरी करनी होगी। वो किस रूप में करती है, देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना के करती है, क्योंकि बीजेपी वहां पे बहुत ही स्लाइड की है। शिंदे ने तो परफॉर्म किया लेकिन बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई, तो बीजेपी को वहां पे डोमिनेंट पोजीशन पे आना पड़ेगा, या फिर उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना का पैचअप कराना पड़ेगा, तभी महाराष्ट्र में बीजेपी की गाड़ी है वो असेंबली में परफॉर्म कर पाएगी। वरना जो वहां पे फॉल्ट लाइन है, वोट ट्रांसफर का हो या फिर इशू का हो, जो एग्रीरियन क्राइसिस है वहां पे, कॉटन, अनियन, ये सारे जो मुद्दे हैं उसके आधार पे वो उन्हें बहुत फाइन ट्यून करना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी में करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। Shankar, thank you so much, and I would like to thank all our subscribers who joined in and for their questions. Please continue to subscribe to The Print. Do read our stories, our deep dive analysis, and at the same time, we will be getting you the latest updates. There will be government formation ceremony soon. We will be getting the latest stories on that. What this new government will look like, what to expect.